Devik Mollik. I am the leader of Hack Club SIT. So today it is our first session. Basically, we have a Hack Club before this pandemic also, but that was not so much active at that time, at that point of time. But now it's quite active, and we are trying to do some crazy stuff which are beneficial for you and your place. If you're checking in your placement scenarios or anything else, or like Gate or any perspective, it will be definitely beneficial for you. So as you all know, today's session is about engineering, and as most of us are basically computer engineers or IT engineers, so that's why we are mainly focused on computer science and IT stuff. But at first we have started with what is engineering and all the things, and we have some more plans for future also. So in the chat we put the Slack link. Please join your Slack group. There were plethora of discussions what we are doing, and we are love to having you there also. So for today, I like to invite Shayani to start about what is engineering and all. So please, Shayani, start with your session. Okay, Bhaiya. Am I audible? Yes, yes, yes. Okay, one question. Is there तुम लोगों में से किसी को क्या हिंदी में कोई प्रॉब्लम है? Anyone who have problem with Hindi? To understand Hindi? Anyone? Okay. Then no problem. Now, Shani, you can start. Okay, Bhaiya. So hello everyone. Yes, yes, yes. And 1 second, it's loading. Yes. So hello everyone and welcome to this session on Introduction to Engineering. So before diving into the main session, let's talk about what is engineering and who are engineers basically. So the basic definition that you will find anywhere about engineering is that it's a branch of science and technology that deals with creation, designing and building of the world. So that is why engineers are called one of the most important building blocks of the society. So without engineers and without engineering, basically, we won't be having any our favorite streaming services or any facilities that we enjoy to do. So all of this is because of engineering. So moving on, let me tell you that, of course, you all know that there are various subfields in engineering, like computer science engineering, IT, that is information technology, and many more like civil and electronics and many more. But today we will be focusing on the technological departments of engineering, that is CSE and IT. So I think in the audience, many of you are from CSE and IT departments. So let me tell you what are the subjects we are actually learning in our 4-year journey. So as you can see on the presented screen, I have listed some of the most important subjects. There are numerous amount of subjects that we are learning in our curriculum, but these subjects are the most important ones. So like programming, data structures and algorithms, digital logic and many more as it's listed. So these are the most important subjects we are learning in our course. So these subjects are actually laying the foundation for the core knowledge about computer science and technology. We will need this in everywhere, like even if we go in our professional worlds, and suppose you have the GATE examination as well, if you are doing that, if you are doing some CP or computer programming skills, you will need all of this and the knowledge will be really beneficial. So the first and foremost thing we need is the knowledge from all this. But everyone will be doing that, right? Every engineering student will be doing this. So we need something extra to inculcate in us so that we stand out in the professional world. So for that, we need this. So today's session will be all about that. We will be telling you about what skills will you have, what skills you can have so that you stand out in the professional world. So definitely the core subjects are not the only thing that we will be learning. You can have any skill you are interested in. So we will be telling you about the skills that are available and are popular in the professional world today. So let me introduce you the first skill that is really amazing, that is CP or competitive programming. So in simple words, competitive programming is
is actually involving your improving your coding skills. So who doesn't want to be a fast and efficient coder? So if you're interested in this, you can move forward, and we will be telling you all about CP and competitive programming in this session. So stay tuned for that. So on the other hand, we have development skills. So if you want to go into development, like suppose if you have an idea, you want to develop something in your life, like some website, some app, you have a dream of doing that. If you are interested in that, you will be going into web development or app development. So how to start web and app development, how to go into it, we will be telling you all about this in this session. So stay tuned for that too. And on addition to that, we will be having machine learning and cybersecurity as well. So these are more advanced fields in technology. So if you are interested in going into these, we will be telling you all about it. What is machine learning, what is cybersecurity, and all of that. So let's begin the session by calling, I think Alok will be coming to tell you all about web development so that you can learn more about it. So Alok, please take the stage. Okay, thank you, Saini. Hello, Alok. Yeah, thank you. Let me present my screen. So, hello everyone, I am Alok, and currently I am working on web development, and I will give you some basic idea about an overview of the web development. So the next 10 minutes I will talk about what is it, where to start, what to study, demand, future demand market में है कि नहीं है, average salary, and the most important top recruiters. So let's start. हाँ, so overview as नाम से ही पता चल रहा है कि something development से related है. So web development is basically involves in developing a website for the internet or the intranet. हम लोग website एक world wide के लिए भी बना सकते हैं और personal use के लिए भी बना सकते हैं. और थोड़ा deep explore करने पे थोड़ा explore करते हैं कि क्या है. पहले किसी भी development field में जाने से पहले उसको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए कि मार्केट है कि नहीं है. तो वेब डेवलपमेंट में हम लोग सिंपल स्टैटिक पेज से लेके कॉम्प्लेक्स वेब ऐप तक बना सकते हैं. जैसे अगर सिंपल स्टैटिक पेज की बात करें तो जैसे कि ब्लॉग पेज में ज़्यादा उतना फंक्शनैलिटी होता नहीं है. तो सिंपल एक पेज है और थोड़ा सा एक ब्लॉग सेक्शन है, तो उस टाइप का वेब पेज को हम स्टैटिक वेब पेज बोल सकते हैं. लेकिन और यहाँ से लेके हम लोग वेब ऐप तक बना सकते हैं. वेब ऐप मतलब कि जैसे कि अमेजोन है, तो अमेजोन में कितना सारा फंक्शनैलिटी होता है, उसमें पेमेंट गेटवे है, बहुत सारा चीज है जो उसमें एडेड है. तो उस टाइप का वेबसाइट, काफी बड़ा वेबसाइट है, तो उस टाइप का वेबसाइट को हम लोग वेब ऐप बोलते हैं. अब और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है. तो इंडिया अभी डिजिटल फील्ड में, डिजिटल मार्केट में बहुत बड़ा इंडिया मार्केट बनने वाला है, अभी भी है. तो इसका फ्यूचर काफी बड़ा. जैसे कि कोई भी स्टार्टअप करता है तो सबसे पहले उसका होता है कि मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस हो. ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब है कि मुझे सब कोई एक प्लेटफॉर्म मिले. तो वेबसाइट क्या करता है कि एक ऑनलाइन प्रेजेंस प्रोवाइड कराता है. तो और भी सारे सोशल नेटवर्क साइट है, फेसबुक है, लेकिन एक अपना खुद का जो टोटल इंफॉर्मेशन हम जहाँ शेयर कर सकते हैं वो एक वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं. तो ई बिजनेस में बहुत ज्यादा ये अभी एक्सपैंड हो रहा है, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा ही एक्सपैंड होगा. कितना अभी डिजिटल इंडिया स्किल हो ही रहा है. और ये हम लोग इस वेबसाइट की मदद से हम लोग सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज भी बना सकते हैं. जैसे कि अभी क्या क्या यूज हो रहा है, जैसे कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, तो ये सब सारे वेब ऐप है, और ये सब सारे टिका हुआ है वेब ऐप पे. तो अब थोड़ा बात करते हैं आगे. तो वेब डेवलपमेंट में बेसिकली दो पार्ट आता है. फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसमें दो पार्ट आता है. फर्स्ट होता है फ्रंट एंड पार्ट, जो कि हम लोग क्लाइंट साइड बोलते हैं, और सेकंड होता है बैक एंड, जो कि सर्वर साइड होता है. तो ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा फुल स्टैक ही करना पड़ेगा. फुल स्टैक करते हो तो बहुत अच्छा है, वो उसका भी अलग डिमांड है. और सिर्फ अगर फ्रंट एंड में ही अपना काम लगाना चाहते हो तो सिर्फ फ्रंट एंड ही स्टार्ट कर सकते हो,
या तो आप प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो बैकएंड में जा सकते हो। तो अभी देखते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड बेसिकली जहाँ एन यूजर विजुअली सी द फर्स्ट ब्राउजर इन एप्लीकेशन, जैसे कि एक व्हाट्सएप है तो हम लोग जो स्क्रीन पे देख सकते हैं उसका पीछे जो क्या चल रहा है, क्या एल्गोरिदम से बना है, वो तो नहीं देख सकते ना। तो जो फर्स्ट जो हम लोग देख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड, और जो पीछे जो क्या चल रहा है, कहाँ सर्वर कनेक्ट है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं बैक एंड। तो यहाँ पे मैंने एक बना के रखा है। तो ये एक है फ्रंट एंड पार्ट, ये एक है सर्वर और ये एक है डेटाबेस। तो अगर एग्जांपल लेके कि कोविड-19 वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस जो यहाँ पे ये फ्रंट एंड पार्ट है, यहाँ पे इंडिया का जितना भी अभी कोविड-19 का स्टैट्स है वो यहाँ पे शो हुआ। तो कैसे काम किया वेबसाइट, तो देखते कैसे काम करता है। तो अगर यहाँ पे मैंने एक सेंड बटन दबाया तो ये रिक्वेस्ट चला गया सर्वर के पास, सर्वर गया डेटाबेस के पास, जिसे कहीं भी कोई स्टैट्स मेरे पास आ रहा है वो तो एक्चुअली कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है ना, तो वो डेटाबेस में स्टोर है। वो हम लोग का जो फ्रंट एंड पार्ट है वो सर्वर से कनेक्ट है। तो एक मिनट, तो एक्चुअली ना इसको हम लोग 3 टियर प्रेजेंटेशन में बोलते हैं। जैसे कि ये एक प्रेजेंटेशन लेयर होता है और ये एक बिजनेस लेयर होता है। बिजनेस लेयर का मतलब होता है कि जो भी हम लोग एल्गोरिदम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी उसके पीछे हम लोग क्या एल्गोरिदम लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग बिजनेस लेयर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं डेटाबेस लेयर। तो ये सब कुछ ये टोटल अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हम लोग बोलेंगे। सो नेक्स्ट है कि अगर हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो फर्स्ट चीज है कि इसेंशियल स्टेप्स। इसेंशियल स्टेप्स में 3 चीज आता है, गिटहब आता है, बेसिक्स का टॉप 20 कमांड आता है, फिर इंटरनेट कैसे काम करता है ये भी हम लोग को जानना पड़ेगा कि डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि हम लोग तो बिना गेट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिना गेट के स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हम लोग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मतलब कि उसमें एटलीस्ट हम 20 दिन दे रहे हैं, मतलब डेली 1-1 घंटा लगा रहे हैं, उसमें डेली कोड लिख रहे हैं, तो अगर बाई चांस में लिखते क्या होगा कि मेरा समा हो सकता है ऐसा कि मेरा डेटाबेस उड़ गया, लैपटॉप ही खराब हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम लोग डेली कोड लिख के डेली पेन ड्राइव में तो डाल नहीं सकते हैं। तो उस गिटहब उस चीज को सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हम लोग अगर डेली भी कोड अपडेट करें तो हम लोग डेली एक कमांड से पुश रिक्वेस्ट मार के वहां पे गिटहब पे हम लोग सेव कर सकते हैं, और ऐसा डेली कर सकते हैं। और हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि मतलब किस दिन हम लोग क्या अपडेट किए। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत चीजें इसमें। तो ये मैंने बेसिक दिया। तो अब स्टार्ट कहाँ से करें हम लोग, फ्रंट एंड में तो मैंने बताया इससे बेसिकली है वेब एप्लीकेशन सो दैट यूजर कैन सी द इंटरेक्ट विद देम। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। तो इतना करने के बाद हम लोग एक छोटा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि लॉगिन फॉर्म हो गया, और क्या बना सकते हैं, छोटा सा ब्लॉग पेज बना सकते हैं, छोटा सा, उसमें हम अपना ब्लॉग लिख दिया, अपना फोटो डाल दिए, ये सब भी कर सकते हैं। और इसमें हम लोग अगर जैसे कि फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर होता है, वो पहले से कोडेड होता है, और उसमें हम लोग को सिर्फ यूज करना आना चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। और उस ये सब चीज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज करके ही बनाया जाता है। तो ये सब का टैग, ये सब का HTML और ये सब का जो टैग सिंटेक्स होता है वो सब यूज करके ही एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, ताकि हम लोग इफिशिएंट वे में किसी भी वेब को बना सकते हैं। लेकिन पहले आप लोग को HTML सीखना पड़ेगा, CSS सीखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट बेसिक सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग किसी भी फ्रेमवर्क में जा सकते हैं। फ्रेमवर्क 3 तरह का है, मोस्ट पॉपुलर है, और भी है, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट रिएक्ट है जो फेसबुक ने बनाया, और एंगुलर है जो गूगल ने बनाया, और व्यू भी पता नहीं कौन सा है।
तो हम लोग अभी तो मोस्ट पॉपुलर जो चल रहा है वो रिएक्ट ही है, क्योंकि रिएक्ट जो है ना वो पूरा पूरा जेएस है। तो अगर हम लोग एक लैंग्वेज पे, ये भी एंगुलर जेएस ये भी है, जेएस भी है, लेकिन रिएक्ट अभी ज्यादा पॉपुलर है, तो जो मार्केट में ज्यादा पॉपुलर चलता है वही यूज करना चाहिए। और बैकएंड का बात करें तो ये तो सर्वर साइड है, कैसे फ्रंट एंड डेटाबेस से कनेक्ट होगा, तो बीच में तो सर्वर आता है ना, तो सर्वर को उसको सीखने के लिए हम लोग या तो आप लोग पहले से जिसका बैकग्राउंड है जावा तो स्प्रिंग में जा सकता है, अगर पाइथन है तो जैंगो में जा सकता है, नहीं तो मोस्ट प्रिफर होता है नोड जेएस। नोड जेएस इसलिए होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, चलो इतना 3 चीज आ गया तो एक फ्रेमवर्क पे भी जा सकते हैं हम लोग। कोई अच्छा सा फ्रेमवर्क सीख लिए तो मतलब हम मेरा सिर्फ सीखे हम एक लैंग्वेज, मेरा काम हो रहा है फ्रंट एंड में और मेरा काम हो रहा है बैक एंड में भी, तो यहाँ भी मेरा नोड जेएस में काम हो गया, जावास्क्रिप्ट एक ही लैंग्वेज सीखे मेरा इधर भी काम हो रहा है। तो बैकएंड के लिए सर्वर साइड के लिए और डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी यूज कर सकते हैं। अब है कि इतना तो कर लिए, इतना सब कुछ आ गया, तो अब क्या रूल्स एंड जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है क्या काम मिलेगा, क्या ऑफिस में क्या जॉब टाइप, किस टाइप का जॉब होता है, तो इस सब में थोड़ा बात करते हैं। तो फर्स्ट है कि डेफिनेटली कि अगर वेब डेवलपर हो तो वेबसाइट बनाना आना ही चाहिए, बेसिक HTML CSS की यूज करके, तो इस टाइप का भी जॉब मिल सकता है, नहीं तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। और भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारा ये होता है कि वेब डिजाइनर के साथ और प्रोग्रामर के साथ मिलके कोई वेब डेवलपमेंट करना हो तो वो भी करना पड़ सकता है। और ये भी होता है कि कभी कभी जैसे कि अभी तो मकआउट का जो प्रॉब्लम चल रहा था वेबसाइट का, तो उसमें भी कभी कभी जो वेबसाइट स्लो डाउन हो जाता है तो उसको बैकअप के लिए भी हम लोग को बहुत जो प्लान बनाना पड़ता है वो सब भी वेब डेवलपर ही करता है। तो ये सब रोल्स एंड और भी हो सकता है, टीम मैनेजमेंट में भी आ सकता है, बहुत इसमें भी वेब डेवलपर का रोल्स एंड ड्यूटीज है। अब आते हैं कि इंडिया में क्या मतलब चल रहा है फुल स्टैक हम यहाँ पे फ्रंट एंड का बात नहीं कर रहे हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपर का सैलरी क्या चल रहा है। तो लोएस्ट में तो इतना जो है, डिपेंड ऑन योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस, इस पे भी सैलरी मैटर करता है, कितना स्किल है कितना जानता है। तो ऑन एन एवरेज अगर लेके चलें तो 6 लाख पर एनम है इंडिया में, और इससे भी ज्यादा ही हो सकता है, डिपेंड करता है, वो तो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। और जैसे कि टॉप रिक्रूटर अभी फिलहाल जो इंडिया में कौन कौन से टॉप रिक्रूटर है, कंपनी है जो हायर करती है वेब डेवलपर को, सबसे पहले आता है अमेजोन। ऐसा लगता है कि इसका तो एक ही वेबसाइट होगा, ये क्या हायर करेगा, लेकिन ये इसका बहुत काम होता है। इसका जो वेबसाइट है, इसका जो कोड बेस है वो तो बहुत बड़ा है ना, तो उसको हैंडल करना और भी काम है, इसलिए तो सिर्फ मतलब अमेजोन कंपनी में बहुत काम है। तो वेब डेवलपर का भी ये लोग बहुत हायर करते हैं, फेसबुक भी हायर करता है, IBM TCS हम लोग तो ये सब है बस। थैंक यू। अब अभी आएगा आदित्य, वो बताएगा कि ऐप डेवलपमेंट क्या होता है। सो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य सिंह एंड मैं आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा ऐप डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, सो बिगिन करते हैं। सो ऐप डेवलपमेंट है क्या, ठीक है, सेकंड स्लाइड। सो ऐप डेवलपमेंट नाम से हम लोग को समझ में आता है कि एप्लीकेशन का डेवलपमेंट, या फिर हम लोग के पास जैसे कि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS या फिर एंड्रॉइड, तो हम लोग इस दोनों प्लेटफॉर्म किसी के लिए भी अगर एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, जो फोन में आपका एप्लीकेशन होते हैं, अगर उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं तो ऐप डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोग एंड्रॉइड का बात करेंगे कि अगर हम लोग को एंड्रॉइड के लिए अगर ऐप बनाना है तो हम लोग कैसे उसको बनाएंगे, या फिर कौन से लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट रहेगा हमको। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज है जावा जो है कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, फॉर एंड्रॉइड जो है वो गूगल ने लॉन्च किया था, आपको सबको पता ही होगा। सो जावा जो था सबसे रिसेंट लैंग्वेज था एंड्रॉइड के लिए एंड बहुत ही वाइड यूज भी हुआ उसका। ठीक है, एंड अभी के सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो कॉटलिन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुका है गूगल का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अभी हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो जावा जानते हैं, ठीक है, पहले से, या फिर हम लोग अगर ICC से हैं, या फिर हम लोग क्लास 10 में भी किए हैं ये सब। तो जावा एज अ प्रेफरेबल लैंग्वेज बन जाता था मेरे लिए, तो मैंने जावा में ही प्रोसीड किया। ठीक है, बट सिनेरियो ये है कि अभी कॉटलिन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है गूगल के साइड से एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, और एंड्रॉइड जो प्लेटफॉर्म है एंड्रॉइड स्टूडियो वो भी गूगल का है।
सो फ्यूचर में ये हो सकता है कि कॉटलिन ही ऑफिशियल लैंग्वेज बन के रह जाए एंड जावा पूरी तरह से हट जाए। तो अगर आप लोग में से कोई भी अगर अभी एंड्रॉइड बिगिन करता है, अगर उसको जावा का नॉलेज है तो जावा से बिगिन करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर तुम पूरा जावा सीख लेते हो एंड फिर कोई दूसरा लैंग्वेज स्विच करते हो तो ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं आएगा। वो बहुत 1 महीने का काम रहेगा, खाली कॉन्सेप्ट सब तो सेम ही रहता है, बस कोड का डिफरेंस रहता है। बट अगर तुमको कुछ नहीं आता है, कोई मतलब लैंग्वेज का कोई जानकारी नहीं है, तो तुम कॉटलिन में ही करना, क्योंकि एज अगर iOS का एग्जांपल दूं मैं, तो iOS में भी मैं आगे बात करूंगा, उसके एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा कि मैं क्यों कॉटलिन बोल रहा हूँ करने के लिए। अभी जो अदर लैंग्वेजेस जैसे सी या C++ जो आप लोग को थर्ड पॉइंट में दिख रहा है, वो सबसे बिगनिंग में जो एंड्रॉइड स्टार्ट हुआ था, तो वो सी जो लैंग्वेज था वो दोनों iOS और एंड्रॉइड के लिए दोनों के लिए यूज होता था, ठीक है। बट जब अर्ली स्टेज में जब आगे के बढ़ते गए तो एंड्रॉइड के लिए जावा पे आ गए सब कोई एंड iOS के लिए स्विफ्ट पे। तो हम लोग अभी iOS का बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो iOS के लिए अभी जो लैंग्वेज चल रहा है वो है स्विफ्ट, ठीक है। अगर आपको iOS पे कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना है तो आपको स्विफ्ट सीखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है उसके लिए, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली खाली iOS के लिए करना है तो। एंड जो ऑब्जेक्टिव सी है, जो मैंने बताया कि C++ ही सबसे उसका अर्ली लैंग्वेज था, तो वो ऑब्जेक्टिव सी जो है वो सबसे अर्ली लैंग्वेज था iOS का, जिसपे एप्लीकेशन डेवलपमेंट चालू हुआ था। अब मैं इसका जो केस स्टडी है आपको मैं खाली ऐसे बताना चाहता हूँ क्यों मैं कॉटलिन को प्रेफर करा था आप लोग के लिए। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि सी जो था सबसे अर्ली लैंग्वेज था iOS के लिए, बट जब एप्पल ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया कि हम लोग अब स्विफ्ट में करेंगे, तो ये था कि बहुत लोग थे कि नहीं, सी तो बहुत पुराना लैंग्वेज है तो हम लोग इसमें कर सकते हैं। बट जब टाइम आते गया तो इसको एप्पल ने कंपलसरी कर दिया कि अब स्विफ्ट पे ही लिखा जाएगा iOS का कोड, तो अब स्विफ्ट ही चल रहा है। उसी तरीके से अगर एंड्रॉइड में भी अब कॉटलिन आ चुका है तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा चांसेस है कि कॉटलिन रिप्लेस कर दे जावा को। तो अगर आप लोग में से जो भी होगा वो एंड्रॉइड सीखना चाहते हो तो कॉटलिन के साथ जाना, और अगर iOS सीखना चाहते हो तो स्विफ्ट ही चॉइस है आपके पास, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसे कि अभी जितना भी लैंग्वेज हम लोग ने देखा वो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड लैंग्वेज है कि अगर iOS बनाना है तो स्विफ्ट कर लेना, अगर एंड्रॉइड करना है तो जावा या कॉटलिन से करना। बट क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, इसमें आपको जैसे कि फ्लटर हो गया, ये जो है गूगल के साइड से इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, ठीक है। इसमें हम लोग डार्ट का जो लैंग्वेज होता है उसके थ्रू कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हैं, एंड इसमें जो किया हुआ प्रोग्राम है वो दोनों iOS और एंड्रॉइड दोनों में रन करके हम अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं। सेम उसी तरीके से रिएक्ट नेटिव भी आता है। रिएक्ट नेटिव थोड़ा अर्ली था, मतलब फ्लटर से पहले आया था फेसबुक का साइड से, एंड इसमें भी सेम है, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोडिंग करते हो, मतलब प्रोग्रामिंग करते हो, एंड उसके थ्रू बनाया हुआ जो भी एप्लीकेशन होता है वो आप दोनों iOS एंड एंड्रॉइड पे रन कर सकते हो। अभी रिएक्ट नेटिव का जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 2 साल पहले रिलीज हुआ था फ्लटर से। तो अभी मतलब अगर कोई डाउट आउट आता है, अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म करना चाहते हो तो रिएक्ट नेटिव के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसका कम्युनिटी अभी के टाइम पे बड़ा है। फ्लटर का भी बढ़ रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उसका कम्युनिटी छोटा है, बट हाँ अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ आता है, तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको ज्यादा चांसेस है कि रिएक्ट नेटिव का आपको सोल्यूशन जल्दी मिल जाए देन फ्लटर, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है कैसे पढ़ना है अगर एंड्रॉइड सीखना है या फिर iOS में एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना है, तो कैसे पढ़ना कैसे है। तो पहला चीज तो डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि अगर आपको कुछ भी सीखना है, अगर कैसे इसको इंपोर्ट करते हैं या फिर इस कोड को कैसे लिखते हैं, तो सिंपली गूगल में सर्च करो, वहाँ पे पढ़ो। डॉक्यूमेंटेशन तो ये होता है ना, पढ़ो एंड फिर वहाँ से सीख के उसको प्रेजेंट कर दो अपना कोड में, कैसे उसको वहाँ से सीख के। दूसरा होता है वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स ही आजकल मोस्ट लोग प्रेफर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तो शायद ही कोई पढ़ता होगा, ठीक है, वो तो ट्रेडिशनल हो गया। तो वीडियो लेक्चर्स ही मोस्टली प्रेफर करते हैं। फ्री सोर्स में आपके पास यूट्यूब है, और पेड में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, यूडेमी या फिर अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप खरीद के सीख सकते हो। बट ये डॉक्यूमेंटेशन वीडियो लेक्चर्स आपको इतना बेसिक सा आइडिया दे देंगे कि, या फिर सिखा देंगे आपको कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट कैसे होता है, एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे चलाते हैं, स्विफ्ट में कोड कैसे करके एप्लीकेशन बनाते हैं, सब सिखा देंगे। बट यहाँ से आप जो सीखोगे ना वो 30 to 35% ही रहेगा। जो आप रियल में एज एंड्रॉइड डेवलपर, आप एंड्रॉइड कह रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलपर अपने आपको कहना चाहते हो, तो आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें अगर आपको कोई इनपुट लेना है, जैसे कोई सेंसर का इनपुट लेना है, माइक्रोफोन हो गया, कि मैं ये बटन क्लिक करूँ तो मेरा माइक्रोफोन एक्टिवेट हो जाए, उससे मेरा कॉल कुछ रिकॉर्ड हो जाए, वॉइस ऐसा था कुछ भी, ठीक है, या फिर मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरा मैप खुल जाए। तो इस तरह का वेरियस प्रोजेक्ट्स है, मतलब अनगिनत है, ठीक है। और जो लर्निंग का फेज है ये ऐसा है कि कभी ना कोई अपने आप को कह नहीं सकता कि मैं पूरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख चुका हूँ, क्योंकि लर्निंग तो कभी रुकता नहीं है, तरह तरह की चीज आते रहते हैं, तरह तरह की चीज आप सीखते रहते हो। तो वही है,
जब भी हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो वैरायटीज ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, धीरे धीरे सब कुछ करते जाओगे ना तो एक आपको क्लियर आइडिया पड़ जाएगा कि कैसे मतलब करना है, एंड आप अपने आप को कह पाओगे कि आप ऐप डेवलपर हो। बट जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं करते, वीडियो लेक्चर्स देख के ओवरऑल खाली सीख के रखोगे तो आप अपने आप को एंड्रॉइड डेवलप मतलब एप्लीकेशन डेवलपर तो नहीं कह पाओगे। हाँ, कह लोगे कि मेरे को आता है कि कैसे करते हैं, बेसिक पता है बस। तो प्रोजेक्ट्स करना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारा मतलब वेबसाइट्स है, हम लोग आपको बताएंगे, मतलब जहाँ पे आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा कि पहले ये कर लो, जैसे कोई लैंग्वेज सीख लो, फिर प्रोजेक्ट्स में स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते करते बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट होगा जो आपका कुछ दिन में हो जाएगा, और वहीं कोई प्रोजेक्ट होगा जिसको करने में आपको 2-3 वीक लग जाएगा, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट जब करते रहोगे ना तो बेसिक आइडिया होते रहेगा, एंड एक प्रॉपर आपका जर्नी स्टार्ट हो जाएगा फिर वहां से ऐप डेवलपमेंट के अंदर। तो अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसका मार्केट में मतलब जॉब स्कोप क्या है। नेक्स्ट स्लाइड करा लो। तो जॉब स्कोप में सबसे पहला तो अभी के टाइम पे, हाँ, जॉब स्कोप में अभी सबसे पहला टाइम में आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग ये कि अगर मानो फर्स्ट ईयर में हो, आपने 2 साल एंड्रॉइड में अपने आपको एप्लीकेशन में या फिर iOS में टाइम दिया, और आपने सीख लिया एप्लीकेशन बनाना, ठीक है, तो आप फ्रीलांसिंग आराम से कर सकते हो अपने सेकंड ईयर से ही। आप क्यों 4th ईयर तक अपना प्लेसमेंट का वेट करोगे? आप अर्न करना चालू करो, पॉकेट मनी से स्टार्ट करोगे, शायद अच्छा करो तो उसी में आप अपना करियर भी बना सकते हो। ऐसा कोई बड़ा मतलब छोटा चीज नहीं है फ्रीलांसिंग, ठीक है। फिर अगर आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया आता है कि ये ऐप बनाते हैं, हाँ, जैसे जोमेटो था, समझो फोन में एप्लीकेशन है एंड वो अब कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो अगर वैसा कोई स्टार्टअप आता है तो उसके थ्रू अगर आप एप्लीकेशन बना के अपना उसको रन करते हो प्ले स्टोर पे, यहाँ वहाँ मार्केट करते हैं, आपका वो चल जाता है, तो आप स्टार्टअप में भी अपना करियर बना सकते हो। एंड एमएनसी तो है ही, बहुत सारी एमएनसी जहाँ पे आपको एज अ एंड्रॉइड डेवलपर रिक्रूट किया जाता है, और नहीं भी तो ओवरऑल आपको इस जो जावा लैंग्वेज आप डीएसएल को सीखा है उसके ऊपर आपको लिया जाएगा। और अगर आप सैलरी का बात करो तो फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप में तो कोई मतलब फिक्स नहीं रहता है, बट अगर एमएनसी अगर आप चाहते हो एमएनसी में जाओ तो अर्ली एज अ फ्री मतलब फ्रेशर्स आपको 4 to 5 या 6 का ऑफर मिल सकता है। बट वही है, जब धीरे धीरे आप ग्रो करोगे तो इसमें ग्रोथ बहुत फास्ट है, धीरे धीरे ग्रो करते रहोगे तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। और अगर बड़ी बड़ी कंपनीज रिक्रूट करेंगी, मतलब ऑफ कैंपस ही जाओगे, हमारे कैंपस में तो उतनी बड़ी कंपनी नहीं आएंगी शायद जो आपको 18 से 20 का दे। तो अगर ऑफ कैंपस की अच्छी कंपनी भी लगता है तो आपका 18 से 20 तक का भी एज अ पर्टिकुलर एंड्रॉइड डेवलपर या iOS डेवलपर में भी लग सकता है। तो हम लोग इतना ही रखेंगे, अभी एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको, और डिटेल में नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट जब भी हम लोग का ये होगा उसमें हम लोग अच्छे से रोड मैप बनाते बनाते सही से इसको क्लियर करते जाएंगे कि कैसे कैसे करना है। Hello. Okay, so let's start. What is machine learning? So you all know this is like hot topic of today in this world. So what is it? What is machine learning? So machine learning is the ability by which computer can learn itself without being explicitly programmed. Like what you mean by this is like, for example, when you say when you hear the email classification, where the computer classifies your email as a spam or not. So this is an example of machine learning. So for this kind of steps, we need machine learning. So in machine learning, there are huge amount of data that are converted into numeric values, and the machine learning algorithms try to find a pattern between these values. And the data can be of any kind of type, like image, audio, text, video, etc. So machine learning is nothing but the ability to learn without being explicitly programmed. Machine learning is the ability by which a computer can learn by itself. So that's what machine learning. So I hope you got some idea of what is ML. Now we come to this. Now that 1 second. Okay, now let's come to what is the difference between the traditional programming and versus machine learning. So traditional programming mainly refers to the software development stuff like Java, C, C++, this kind of stuff. So in software development, what we do is we give the input, then we give them the rules or the logic, then we produce an output. Whereas in machine learning, we give the input and then we give the output. What machine learning algorithm will do is they will find the pattern between the input and the output and find out the rules or the logic behind it. So this is the main difference between traditional programming and the machine learning programming. So this is a simple equation. Like in traditional programming, we give the input and the program. So then the output comes. Whereas in machine learning, we give the input and the output, then the program or the logic behind it,
we get that. So that's the basic difference between traditional programming and the machine learning. So now, why we need machine learning? So before this, I want to ask you: have you ever played chess or Ludo game that in mobile or web? I hope yes, everyone has played this kind of games. But have you ever know how this game beat you in that game? Like, and if you notice the movements of the computer is not same all the time. All the time you play, it changes each and every time you play. So as the movements are changing each and every time you play, so it's not possible for someone to write the entire code in a traditional form. Like, uh, in how many ways coder or developer will write the code? You have 10, 15 or 20 times max, not more than that. And how the computer changes its game each and every time it plays. So it's nothing. What computer does is that it learns from the moves and then it plays. Each time you play the game, the computer trains itself and learn to play the game and learn to play the game. And it's not learning just from you. It's getting data from all of the persons who is playing the game. So machine learning helps to deal with this kind of stuff. So yes, sometimes players or play the game, and sometimes newbie or the newcomer plays the game. So machine learning also makes the different set of rules for different people. So you may have seen before playing the game, the computer asks you that what you want to play as a beginner or an intermediate or an expert. So in this way, machine learning also detects the behavioral changes. So in short, machine learning helps deal with the problem with long set of rules. Like we have n number of ways how can we play. So it helps us with long set of rules, and it also detects the behavioral changes of the thing. So till now we have seen like what is machine learning, difference of machine learning, and why you need machine learning. So now let's see some real life examples where you use machine learning every day. So now comes the digital assistants. In day-to-day life, we use these products every day for some use. But have you ever wondered how do they respond and how do they understand the things you say? Well, it's because of NLP, it's neural language processing. It's a part of machine learning. In this device, suppose you want to give a command to switch off the light, but instead of saying switch off the light, you said light switch off light, and any kind of things. The computer understands it and uh, and responds to it. So it's not mandatory to say in a proper way. This is the things we can do with machine learning. And then there is also some things about product recommendations. For example, while shopping in an Amazon, Flipkart, or any other online shopping websites, you have noticed that they recommend the stuff that is related to the thing you are buying. Like for example, if you are buying mobile phone, then they recommend you screen guard or back guard. So they cover what do you want, but how do they know? They get the data. So actually they get the data from the previous buyers who along with the mobile have bought such guards or things, subs. So in this way, machine learning also recommends the system, and it also helps in business, in going to business. And also machine learning helps in uses Google Photos, like as you have seen in this GIF. In photos, machine learning clusters this kind of stuff. So uh, it helps us to cluster the picture of same sizes, a picture of same frames. So before going into this, see a video like how you can do the things in machine learning. And welcome MIT TechTest 191, official introductory course on
this class, learn how. Hi, everybody, and welcome to MIT 6S 191. Hi, everybody, and welcome to MIT 6S. So हम लोग क्या देखा है यहाँ पर कि हम लोग डीप लर्निंग से ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी का और का वॉइस हम लोग किसी और के बारे में कर सकते हैं, किसी और के सेंटेंस का और के वॉइस में कर सकते हैं। ये हम डीप लर्निंग और न्यूरल नेट से कर सकते हैं और ये सब मशीन लर्निंग के अंदर में होता है। सो हम लोग तो देखा है कि मशीन लर्निंग क्या होता है, डिटेक्शनल और नॉर्मल मशीन का डिफरेंस क्या होता है, फिर देखा है कि एग्जाम्पल्स क्या क्या होता है। तो आप क्या है स्किल्स क्या क्या लगेगा, सो व्हाट आर द स्किल्स नीडेड फॉर लर्निंग मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग के लिए मैथ्स तो इम्पोर्टेंट है, सो मशीन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैथ्स। But after listening to this, most of the people think that it's tough. It's not possible for everyone to so everyone thinks that he or she should be an expert in maths or something like that. But no, it's not like that. But what you have to do is you have to know some topics of machine learning, and in that topics in these topics you have to filter and study. Not that maths कर लो सब, it's not that like that. So मैथ्स बेसिक है, बट कुछ पॉइंट्स वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद सेशन में। जो मैथ्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो देन आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाईली रिकमेंडेड डू द थिंग्स सब इन पाइथन और सी प्लस प्लस जावा सब में होता है मशीन लर्निंग। बट पाइथन में क्या है, कुछ रिसोर्सेज अच्छा है, बट देयर आर सम मॉड्यूल्स व्हिच आर हेल्पफुल फॉर अस। देन नंपाई क्या होता है, सब न्यूमेरिक वैल्यूज में न्यूमेरिकल्स के लिए काम आता है। और हम लोग को पहले ही बोल दिया कि मशीन लर्निंग जो होता है डेटा को न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उससे मशीन लर्निंग वो पैटर्न्स समझता आता है। सो नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन यू कम टू पांडास, इट्स हेल्प टू डाटा विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है, डेटा क्लीनिंग के लिए भी काम आता है। देन आता है सी प्लस और मैथ प्लस, ग्राफिकली जो हम लोग डेटा देखते हैं इसके लिए सी प्लस और मैथ प्लस के लिए आता है। फिर एडिशनली कुछ भी आईटीओ आप लोग यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली जुपिटर नोटबुक, पाइथन, वीएस कोड या गूगल कोलैब भी हम लोग यूज कर सकते हैं। गूगल कोलैब में क्या एडवांटेज है, क्या वहाँ पर जीपीयू आता है फेमस, और मोस्ट ऑफ देम यूजेस दैट ओनली। देन कैरियर पास क्या क्या है यहाँ पर। So the first one is machine learning engineer जो ये सब काम करता है, क्या पैटर्न निकलता है। सो जो बोला वो मशीन लर्निंग इंजीनियर हो सकता है पहले, फिर डेटा साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट इज नॉट जस्ट ऑफ मशीन लर्निंग, इट्स कंसिस्ट ऑफ it's an advanced technologies in providing machine learning and predictive modeling to collect, analyze and interpret large amount of data to this accountable insist। क्या होता है डेटा साइंटिस्ट का काम, क्या होता है एक डेटा को क्लीनिंग करना पड़ता है। पहले तो डेटा को निकालना पड़ता है, फिर क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी अनयूज भी डेटा लगेगा नहीं, वो भी चला आता है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। फिर कुछ होता है कि नल वैल्यूज भी आ जाते हैं, उसको रिमूव करना पड़ता है। सो ये सब काम करने के बाद मशीन लर्निंग पैटर्न में डालते हैं वो, फिर क्या कुछ आउटपुट आता है। सो ये भी एक काम कर सकते हो आफ्टर कॉलेज। एनएलपी साइंटिस्ट क्या होता है, डिजिटल असिस्टेंट जो देखा वो सब एनएलपी साइंटिस्ट वो भी बनाया है। एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्या करता है कि आपका जो ह्यूमन वॉइस है वो कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और so this is the NLP is the main thing which is responsible for all the digital assistance works, which is helpful for the human interaction। फिर होता है बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। वो आपका क्या होता है, कभी आपका शॉप में गए हो तो सपोज क्या ब्रेड और मिल्क साथ में रहता है, क्योंकि जो ब्रेड लेता है हर समय वो मिल्क लेता है। सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
तो मॉल वाला क्या करता है, बेड एक कोना में रखता है, फिर मिल्क दूसरा कोना में रखता है। क्यों रखता है? ये सब बिजनेस टेक्नोलॉजी है कि एक बेड यहाँ पर रखता है, फिर मिल्क लेने के लिए उसको ऑन द वे पूरा मॉल के अंदर घूमना पड़ेगा। तो क्या होता है कि मॉल घूमने के लिए कुछ अच्छा लग गया तो खरीद ले सकता है। तो ये सब भी कम कर सकते हैं कि बिजनेस को कैसे बनाता है, आप ये में भी यहाँ पर भी काम कर सकते हो। फिर होता है ह्यूमन सेंटर्ड मशीन लर्निंग डिजाइनर। वो क्या होता है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो होता है, इन लोगों का काम ये होता है, ह्यूमन सेंटर के ऊपर ये सब काम करता है कि प्रोडक्ट को कैसे रिकमेंड कर सकते हैं। हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स में आप देखते हो ना कि एक वीडियो के बाद फिर आता है रिकमेंडेड फॉर यू, बट यू मस्ट वॉच दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो वो सब का ह्यूमन सेंटर्ड मशीन लर्निंग डिजाइनर में भी काम कर सकता है। मशीन लर्निंग इंजीनियर का सैलरी कितना है? तो सैलरी कुछ अच्छा ही है सर, इवन से 102K इज अराउंड 11 lakhs पर ईयर। सब कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। सो इट्स क्वाइट एवरेज सैलरी, एवरेज बेस पे ये होता है। सो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी यू कैन गेट आफ्टर मशीन लर्निंग। हाँ, बिफोर एंडिंग दिस आई वांट टू से दैट मशीन लर्निंग के लिए आपको MSc बाय M.Tech और PhD हायर डिग्री करना पड़ता है, क्योंकि मशीन लर्निंग को होता है कि वहाँ पर एक्यूरेसी को मेंटेन होता है। एक्यूरेसी के लिए आपको क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए वो लोग B.Tech और BSc ऐसे कुछ लोग नहीं लेता है। MNC तो कभी भी नहीं लेता। हाँ, स्टार्टअप में ले सकता है, बट आप जब स्विच करना चाहते हो तो जो जिस कंपनी में स्विच करना चाहते हो वो लोग चाहिए आपको कि आपको MSc या हायर सर्विस चाहिए। सो आपको तो इसमें क्या हायर सर्विस करना पड़ेगा। तो बिफोर कंक्लूडिंग सेशन आई वांट टू से दैट मशीन लर्निंग के लिए मशीन लर्निंग इज इट्स नॉट लाइक अभी स्टार्ट किया तो एक महीने में सीख गया, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू हैव पेशेंस फॉर दिस, बिकॉज पहले तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने वो MD का कोर्स स्टार्ट किया था। तो क्या होता है, यहाँ पर टाइम लगता है वहाँ पर काम करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आज स्टार्ट किया तो एक महीने बाद 2 महीने बाद नहीं होगा वो, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, फिर आपको डेवलपमेंट भी करना पड़ता है। हाँ, और वन मोर थिंग, एक मशीन लर्निंग के लिए सिर्फ मशीन लर्निंग तो है एक बार, बट सिर्फ मशीन लर्निंग करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सपोज अमेजन का एग्जांपल ले लिया, जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आता है तो वहाँ पर मशीन लर्निंग तो काम करता है, पर आपको जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज भी वो भी सीखना पड़ता है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट तो करना कैसे है, मशीन लर्निंग मॉडल बना लिया, फिर डिप्लॉयमेंट भी करना पड़ेगा ना। इसके लिए वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, वेब ऐप फिर वो सब भी सीखना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट इज मशीन लर्निंग इन अ नटशेल, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दैट। कुछ तो समझ में आया ना। फिर हम लोग अगले सेशन में तो करेंगे डिटेल्स, ईच एंड एवरी टर्म्स की डिटेल्स से हम समझाएंगे क्या होता है क्या है। तो यही है मेरा। अभी शायद साइबर सिक्योरिटी है, तो अमन प्लीज हैंड ओवर टू यू। So hello everyone, am I audible? Yes, you are audible. Yes. Okay. So what is cyber security? So cyber security is basically the practice of protecting systems, networks and programs from digital attacks. तो सबको तो पता ही है कि सिस्टम, नेटवर्क और प्रोग्राम्स ये सब मिल करके एक मतलब बेसिक कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्राम ये सबको कंप्राइज करता है। तो उसके ऊपर हमेशा अटैक होते रहता है। वो जैसे हम लोग कहीं भी रहते हैं तो किसी न किसी फॉर्म में अटैक होता ही रहता है हम लोग के ऊपर। वो डिजिटल अटैक होता है। तो अटैक बहुत सारा तरह का होता है। डीडोस अटैक होता है, मैन इन द मिडल अटैक होता है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है, और कई तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे कंप्यूटर में आके एक तरह का अटैक करता है। तो इससे हम लोग का खतरा क्या होता है कि हमारा जो प्रीशियस डेटा सब है वो चोरी होने का डर रहता है। तो कहीं कहीं पर बड़ा बड़ा डेटा ब्रीच भी होता है, किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा बड़ा डेटा ब्रीच होता है। तो जैसे हम लोग कहीं पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे फेसबुक में साइन अप किए, अगर फेसबुक के ऊपर डेटा ब्रीच अटैक हुआ तो हमारा ईमेल एड्रेस क्या क्या कंप्राइज करता है, हमारा नाम रखता है, हमारा फोन नंबर रखता है, एड्रेस रखता है, और कभी कभी हमारा बैंक डिटेल भी रखता है। तो डेटा ब्रीच में क्या होता है कि हमारा वो सारा का सारा डेटा लीक होने का डर रहता है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि
हमारा डेटा ब्रीच कहीं पर हुआ है या नहीं। तो अभिलाषा प्लीज शेयर द लिंक इन द चैट बॉक्स। तो आप लोग उस लिंक से देख सकते हो कि आपका कहीं पर डेटा ब्रीच तो नहीं हुआ, तो उसको आप लोग चेक कर सकते हो। आगे आते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग ने देखा साइबर सिक्योरिटी जब अटैक होता है तो हम लोग का आइडेंटिटी थ्रेफ्ट हो सकता है। मतलब बेसिकली जैसे भी हम लोग कहीं पर भी कुछ भी, जैसे गूगल फोटोज में फोटोज रखते हैं, गूगल फोटोज के सर्वर पर अटैक हुआ तो हम लोग का सारा फोटोज वहां से जा सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि इन सब चीजों को बचाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, कुछ लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। उन लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग किसी और वेबिनार में बात करेंगे, किसी और सेशन लेंगे स्पेशली फॉर साइबर सिक्योरिटी, देन वी विल टॉक अबाउट दैट। तो जैसा कि कहा मैंने कि लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन अक्रॉस द कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम्स। मतलब अलग अलग प्रोग्राम जो होते हैं, नेटवर्क के लिए अलग सिक्योरिटी लेयर होता है, कंप्यूटर के लिए अलग होता है, प्रोग्राम के लिए अलग होता है, जो डेटा होता है सर्वर पर उसके लिए अलग होता है। तो बेसिकली तो साइबर सिक्योरिटी ये होता है। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत सारा तरह का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी होता है, तो हम लोग इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी होता है जो यूजर लेवल पर जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं सामने में, और एक कर्नल लेवल पर होता है। इन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अगले सेशन में एक एक टॉपिक पर। फिर एनक्रिप्शन होता है, उसको सिक्योर करने का होता है तरीका। फिर डिक्रिप्शन होता है, उसको सिक्योर करने का तरीका होता है। वेब सिक्योरिटी होता है। तो वेब सिक्योरिटी बेसिकली होता है जैसे जैसे हम लोग वेबसाइट को सिक्योर वगैरह करते हैं। ब्राउजर सिक्योरिटी होता है, तो ब्राउजर जो हम लोग यूज करते हैं जैसे क्रोम वगैरह, तो क्रोम को हम लोग सिक्योर करते हैं ताकि जैसे क्रोम हमारा कुछ माइक्रोफोन में एक्सेस कर रहा हो या वीडियो कैमरा ना एक्सेस कर रहा हो, तो उसको सिक्योर करते हैं हम लोग। फिर मालवेयर एनालिस्ट जो होता है, तो वह मालवेयर एनालिस्ट एनालाइज करता है जो मैलिशियस एक्टिविटी सब जो होता है उसको। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी होता है, जो हम लोग नेटवर्क को सिक्योर करते हैं कि नेटवर्क हमारा कहीं बीच में कहीं इधर से उधर ना हो रहा हो, कम्युनिकेशन में कुछ इंटरफेरेंस नहीं हो रहा हो। फिर वायरलेस सिक्योरिटी होता है, जो हम लोग राउटर जो रहता है जिससे हम लोग बेसिकली इंटरनेट जो हम लोग का जहाँ से कनेक्ट होता है कंप्यूटर या फोन में, तो उसको हम लोग चेक करते हैं कि वहाँ पर कहीं पर कुछ सिक्योरिटी फ्लॉ ना हो। तो वैसे ही एंड्रॉयड सिक्योरिटी होता है, तो एंड्रॉयड तो बेसिकली ऑलमोस्ट वो सिक्योर ही है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर ही है, लेकिन जो बेसिकली जो फ्लॉ होता है वो ऐप सब में होता है। तो ऐप सब को हम लोग चेक करते हैं उसकी सिक्योरिटी को। फिर फॉरेंसिक्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्स जो होता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम रहता है वो डेटा को एनालाइज करता है उस उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि वो ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह का उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम ना हो, उसका डेटा ना ब्रीच हो। तो हम लोग आते हैं जॉब कैटेगरीज में। तो साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग तरह का जॉब कैटेगरी है। तो एक ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, जो ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फायरवॉल इशू है, आईपीज या आईडीएस होता है, इंट्रूजन से रिलेटेड जो भी रहता है कुछ, उससे होता है। एंटीवायरस सॉल्यूशन जो होता है, हम लोग मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो एंटीवायरस होता है वो हमारे जो नॉर्मल एंटीवायरस है उससे अलग होता है। तो उसको उसके ऑपरेशन को उसको ऑपरेट करने के लिए एक अलग कैटेगरी है जो इस कैटेगरी में आता है। ऑपरेशन की कैटेगरी में एक पॉलिसी कैटेगरी होता है जो बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पॉलिसी क्रिएट करता है कि उस पॉलिसी से बाहर कोई किसी भी एरिया में काम नहीं कर सकता है ताकि डेटा का कुछ इशू ना हो। फिर उसके बाद आता है साइबर इंटेलिजेंस। तो साइबर इंटेलिजेंस बेसिकली होता है क्या है कि उसको डिजाइन किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। हम लोग एक कलेक्शन ऑफ थ्रेड जो होता है किसी पर्टिकुलर डोमेन में, उसके लिए एक इंटेलिजेंस टीम बैठाते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक डोमेन को कवर करता है, वो साइबर इंटेलिजेंस में आता है। उसकी बात है रिस्क मैनेजमेंट। तो हम लोग ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है। कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो उसमें अगर हम लोग किसी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो उस डेटा को एक्सेस करने में कितना रिस्क है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट कैटेगरी में आ जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग पे स्केल।
तो पे स्केल के लिए सब इंटरेस्टेड रहता है। तो साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग तरह का पे स्केल होता है। तो फर्स्ट में आता है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का बेसिक पे जो होता है तो वो स्टार्ट होता है 4 लाख से और 8 लाख पर एनएम तक जाता है। तो उसके बाद दूसरा आता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो इसका बेसिक एनुअल इनकम 6 लाख से स्टार्ट होता है। तो बुरा नहीं है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बैचलर डिग्री में ही मिल सकता है ये। उसके बाद आ सकता है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। तो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का सैलरी स्टार्ट होता है 17 लाख पर एनएम से। तो ये काफी अच्छा है। उसके बाद आता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो इसका जो सैलरी होता है वो इन बिटवीन 2 करोड़ से 4 करोड़ तक होता है। तो साइबर सिक्योरिटी का सैलरी इस तरह का होता है। तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो कुछ तो हम लोग को डिग्री चाहिए या कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स चाहिए ही। तो हाँ, साइबर सिक्योरिटी में स्पेशल डिग्री कोर्स है जो कि है बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी। तो बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी हाँ हमारे कॉलेज में नहीं है। तो हम लोग कैसे करें? तो इसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेशन कोर्सेज है कुछ। तो जो भी हम लोग नॉलेज गेन करें तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए। तो अलग अलग तरह का सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो कुछ टॉप 5 सर्टिफिकेशन कोर्स है यहाँ पर, उसको आप लोग देख सकते हो। तो पहला CEH है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। उसके बाद CRISC है, सर्टिफाइड इन रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल। फिर CIPP है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी प्रोफेशनल। फिर फोर्थ है CISM, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। फिफ्थ में आता है CISA, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर। तो ये कुछ टॉप 5 सर्टिफिकेशन कोर्स है। और एट लास्ट में एक फन फैक्ट है कि जितना भी हम लोग इंटरनेट सर्च करते हैं, जो हम लोग को दिखता है ऑनलाइन, जो भी हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, जो भी गूगल में इंडेक्स होता है या याहू में हम लोग सर्च करते हैं या फिर विकीपीडिया में या फिर बिंग में, तो हम लोग को लगता है कि जो भी हम लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं वो पूरा का पूरा इंटरनेट है, सारा इंटरनेट वही है। लेकिन ऐसा होता नहीं। वो जो हम लोग को दिखता है वो सरफेस वेब के अंदर आता है, और जो भी इंटरनेट है, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट वो डीप वेब के अंदर आता है। ठीक है, तो डीप वेब क्या कंप्राइज करता है? डीप वेब स्पेसिफिक URL रखता है जो हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते नॉर्मल ब्राउजर से। तो वो वहां पर हम लोग का सीक्रेट जो भी डेटा सब है वो स्टोर रहता है, जैसे कि फाइनेंशियल या मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गया, या प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, प्राइवेट नेटवर्क वो किसी जो सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन सब है जो सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है, जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सब है, उसका कुछ प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो डीप वेब के थ्रू जाता है। फिर गवर्नमेंट का लीगल डॉक्यूमेंट सब है जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, या फिर कुछ टॉप क्लास रिसर्च पेपर होता है जो नॉर्मली गूगल पर नहीं मिलता है, वो डीप वेब के अंदर आता है। तो उसके बाद डार्क वेब जो होता है वो डीप वेब के अंदर ही आता है। तो डार्क वेब में जो भी इलीगल एक्टिविटी होता है, जो भी जैसे कुछ भी जो इलीगल होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग्स डीलिंग हो गया, तो ये सब डार्क वेब के अंदर आता है। डार्क वेब इसको कंप्राइज करता है। तो इसमें फन फैक्ट क्या है, जो हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं वो टोटल इंटरनेट का बस 4% है, और जो भी है वो डीप वेब के अंदर में आता है। तो और भी जितना भी और भी टॉपिक सब था उसको हम लोग एनालाइज करके अगले जो भी सेमिनार होगा उसमें देखेंगे। साइबर सिक्योरिटी में अभी इतना ही हम लोग रखते हैं। तो नेक्स्ट शायद कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग है। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ Yes, भैया। ओके, सो तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ पूरा। तो पहले जो पार्ट आता है ये मैंने व्हाट इज CPQ लिखा है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ये टर्म हर जगह पे दिखोगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं बोल के ज्यादातर जगह पे CP लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली CP होता क्या है, तो अगर सर्च करोगे या करेंगे क्योंकि CP के साथ डेवलपमेंट एक पार्ट हो गया। अगर कंप्यूटर साइंस में जाओगे तो तुम्हें 2 पार्ट दिखेंगे, एक हो गया मेरा डेवलपमेंट वाला पार्ट और एक हो गया कंप्यूटर कोडिंग वाला पार्ट। अब बहुत सारे लोग कंप्यूटर कोडिंग नहीं करते, तो अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
पर अगर मैं करूँ तो क्यों करूँ, कोई तो फायदा होना चाहिए ना। तो अगर कम्पिटिटिव कोडिंग देखोगे तो कम्पिटिटिव कोडिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर कुछ ट्रिकी और पजल्स और जो प्रॉब्लम्स होते हैं कोडिंग रिलेटेड उनको सॉल्व करना होगा। इसमें तुम कुछ डेवलप नहीं करते हो, कोई वेबसाइट डेवलप नहीं करते हो, कोई ऐप डेवलप नहीं करते हो, कोई मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप नहीं करते हो, तुम क्या करते हो, तुम बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। अब अगर कम्पिटिटिव कोडिंग को मैं समराइज करूं एकदम बेसिक लेवल पे, तो वो क्या है, बेसिकली तुम्हारे पास कुछ इनपुट होगा, ये एल्गोरिदम वाला पार्ट तुम्हें लिखना होगा और ये आउटपुट उन लोगों ने दे दिया होगा। तुम्हारे पास क्या होता है, एक इनपुट वाला पार्ट होता है कि तुम्हें कुछ इनपुट दिया हुआ होगा और कुछ इनपुट वो लोग रन करवाएंगे, तुम्हें ये एल्गोरिदम जनरेट करना है। एल्गोरिदम मतलब बेसिकली एल्गोरिदम जनरेट करके कोड लिखना है तुम्हें, और उसके बाद क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो लोग रेडी करेंगे, देखेंगे कि चेक करके कि तुम्हारा जो आउटपुट मतलब कोड है वो क्या वही आउटपुट जनरेट कर सकता है, अगर कर सकता है तो तुम्हारा कोड ठीक है। तो यही है। अभी इसको अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग अच्छा ठीक है, तो समझ में आ गया कम्पिटिटिव कोडिंग होता क्या है। तो अब हम लोग मतलब क्या क्या सीखे, स्टार्ट कहाँ से करें। तो पहला जो फर्स्ट स्टेप है कि तुम्हें थोड़ा कोई भी एक लैंग्वेज आना चाहिए। लैंग्वेज क्या आना चाहिए, कोई भी लैंग्वेज आ जाए कम्पिटिटिव के लिए वही अच्छा। पर सबसे ज्यादा मार्केट में चलता है C++ और उसके बाद जावा, ये दोनों लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब अगर तुम्हें ये दो लैंग्वेज आते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं सीख पाओगे। पाइथन हो गया, पाइथन बहुत अच्छा चलता है अभी। जावास्क्रिप्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो। तो तुम्हें कोई भी एक लैंग्वेज पिक कर लो, उसके बेसिक्स सीख लो कि बेसिक्स कंडीशंस कैसे लिखते हैं, लूप्स कैसे लिखते हैं, उसके बाद स्विच केस कैसे करते हैं। ये सब सीखने के बाद तुम क्या करो, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करो कि बेसिक के डेटा स्ट्रक्चर्स, एक स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सब क्रिएट करना कि क्रिएट कैसे करते हैं, एक एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सब सिर्फ सीखो। उतना ही काफी है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर सकते हो क्या। अगर इतना कर सकते हो तो उसके बाद तुम क्या करो, बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। बेसिक प्रॉब्लम्स कहाँ से सॉल्व करें ये मैं अगले स्लाइड में बता दूंगा कि कहाँ से करना है, पर तुम्हें क्या करना है, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और उसके बाद एक टाइम होगा कि अगर तुम ऐसे पाथ में चलोगे ना कि अच्छा ठीक है, इस सब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कवर कर दूंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा, तो इस ऐसे करके कभी नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा, इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स अभी अवेलेबल है, और जितने सारे मतलब उतना अगर तुम सीखने गए तो तुम्हारा खत्म कभी नहीं होगा। तो बेस्ट प्रोसेस क्या है, बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो सीखो, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, मेरा ट्री हो गया, ये सब सीख लिया। उसके बाद तुम स्टार्ट कर दो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करना। उसके बाद क्या करो, उसके बाद से सोचो कोई प्रॉब्लम दिखा, वो हो नहीं रहा, अब क्या करो, एक्सपर्ट से किसी भी वेबसाइट में जाके उसका सोल्यूशन देख लो, या वो कॉन्टेस्ट खत्म हो गया उसके बाद उसका सोल्यूशन देख लो। सोल्यूशन देखने के बाद तुम क्या करो, वो उसका जो एल्गोरिदम है वो समझने की कोशिश करो, वो एल्गोरिदम क्या है, उसको लेके और ज्यादा पढ़ लो। पर इस बात में कभी मत करना, डेवलपमेंट में भी ऐसा ही होता है, कम्पिटिटिव में भी, कि मैंने पूरा कर लिया उसके बाद स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो पूरा कभी खत्म नहीं होगा। किसी भी लैंग्वेज का भी नहीं खत्म होगा, डेटा स्ट्रक्चर का भी नहीं खत्म होगा। तो एक बेसिक्स का करने के बाद ही स्टार्ट करते। उसके बाद जो होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से करें, ये तो समझ लिया कोड की क्या होता क्या है। तो ये सारे कुछ प्लेटफॉर्म्स है, कोडशेफ हो गया, लीड कोड हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, हैकर हो गया, हैकर रैंक हो गया, टॉप कोडर हो गया। अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है। मैं तो जो बोलूंगा कि स्टार्ट करने के टाइम पे तुम सब प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करो, सब में जाके तो एक उन लोगों का ईवाई चेक करो, उन लोगों में बहुत कैसे होता है काम, वो चेक कर लो। अगर चेक करोगे कंक्लूजन, अभी मुझे जितना पता है उससे उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कोडशेफ और कोड फोर्सेस में अगर तुम मतलब कोडशेफ में जितना ज्यादा स्टार ले आ पाओ और कोड फोर्सेस में जितना ज्यादा तुम्हारा मतलब उन लोगों का पर्पल बेल्ट होता है, अलग अलग होता है, ग्रैंड मास्टर होता है, जितना ऊपर जा पाओ तो अच्छा है उन लोगों का। ये हो गया कॉम्पिटिटिव के एस्पेक्ट से। हैकर आउट और हैकर रैंक अच्छे हैं अगर तुम जॉब पर्सपेक्टिव से देखो तो, क्योंकि क्या होता है ज्यादातर जो जॉब्स होते हैं उनके लिए भी क्या करते हैं कंपनी, जैसे अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, कोई भी, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हायरिंग के टाइम पे एक कॉन्टेस्ट रख देंगे हैकर आउट पे। सोचो तो तुम्हें क्या करना है, उस कॉन्टेस्ट में जो लोग सबसे अच्छे करेंगे उन लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे। तो हैकर आउट और हैकर रैंक जॉब के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा यूज होता है। कोडशेफ कोड फोर्सेस हो गया मेरा किस पर्सपेक्टिव में, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के पर्सपेक्टिव में, जितना ज्यादा अच्छा रैंक लाओगे उतना अच्छा है बात के लिए। लीड कोड किन लोगों के लिए, लीड कोड भी बहुत अच्छा है। अभी ये पहले यूएस में बहुत पॉपुलर था, अब इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो क्या होता है ज्यादातर टाइम पे ये लीड कोड या गिग्स फॉर गिग्स, यहाँ पे मैंने गिग्स फॉर गिग्स देना मैं भूल गया था, गिग्स फॉर गिग्स और एक है, वहां पे भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो।
लीड कोड गीक्स फॉर गीक्स से क्या होता है, बहुत सारा टाइम ये हुआ है कि वहां में जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं वही क्वेश्चंस पूरे मतलब सेम टू सेम क्वेश्चंस तुमने को पूछ जाएंगे। तो अगर तुमने लीड कोड थोड़ा पढ़ लिया अच्छे से या जीएफजी अच्छे से गीक्स फॉर गीक्स पढ़ लिया तो प्रोबेबिलिटी है कि वो सेम क्वेश्चंस तुम्हें वहां पर भी आए। टॉप कोडर और एक अच्छा है, तुम वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग में सब कुछ एक्सप्लोर करो, बाद में किसी एक में जाके वहीं पे अपना रैंक जो है इम्प्रूव करते जाओ, क्योंकि वो जो रैंक होता है वो बहुत मैटर करता है बाद में प्लेसमेंट के टाइम पे। अब जो मेन टॉपिक आता है कि अच्छा समझ लिया, और एक जो चीज जब स्टार्ट करोगे देखना, मेरा भी वही सेम हालत हुआ था कि जब स्टार्ट करोगे ना तो नहीं होगा, शुरू में टाइम लगेगा, प्रॉब्लम्स देखने ना कि कुछ टेस्ट केस रन ही नहीं होगा, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ये अच्छा ये टेस्ट केस रन नहीं हो रहा, कोड शीट में तो दिखाता भी नहीं कौन सा टेस्ट केस रन नहीं हो रहा, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम में क्या करना है, उस टाइम में सिर्फ तुम्हें टाइम देना है अपने आप को। एक प्रॉब्लम लो, एक प्रॉब्लम को लेके 1.5 घंटा 2 घंटा लगाओ, ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद अगर मतलब जो स्टार्ट करो तो पहले कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस जो कॉन्टेस्ट है उनके क्वेश्चंस एक्सप्लोर करो, देखो अगर नहीं हो रहा है तो ट्राई करो 2 घंटा 1 घंटा, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन देख अगर समझ आ गया तो फिर खुद से स्क्रैच से कोड करो, तो यही सबसे बेस्ट अप्रोच होगा। तो अब जो होता है जॉब्स के पर्सपेक्टिव में जो रोल नॉर्मली सबसे ज्यादा मिलता है, अब ये रोल वेरी करता है, कि मैं पहले क्लियर कर दूं। जैसे तुमने वहां पे देख लिया वेब में फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, फुल स्टैक डेवलपर हो गया, या तुम्हारा ऐप लेवल हो गया। अगर तुम किसी फैंग टाइप की कंपनीज में अप्लाई करते हो, अब जिन लोगों को फैंग नहीं पता वो बता देता हूँ कि फैंग एक शॉर्ट फॉर्म है जो बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था। ये फैंग का मतलब है एक का फेसबुक, एक का अमेजोन, कभी कभी एप्पल भी बोलते हैं, इनका नेटफ्लिक्स हो गया और जी का गूगल हो गया। इन कंपनीज में अगर तुम अप्लाई करते हो, अगर फ्रंट एंड के लिए अप्लाई किया, एंड्रॉइड के लिए अप्लाई किया, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स आना ही चाहिए। और वो किससे अच्छा आएगा, अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव तुम्हारा अच्छा है तो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर अच्छा ही होगा। ये जनरल मतलब सोच ही सकते हो कि उसका अच्छा है, वो नहीं तो कॉम्पिटिटिव अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये फैन टाइप के जो कंपनीज है उसमें तुम जा सकते हो, तो उन लोग और अगर तुम सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स तुम्हें आते, कोई स्पेसिफिक रोल में नहीं जाना चाहते, फ्रंट एंड बैक एंड इस सब में, तो तुम्हारा जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर पोजीशन होता है, SD1 होता है ज्यादा टाइम पे, वो हो गए। और क्या कंपनीज हो सकते हैं, अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गया, सैमसंग हो गया, सैप हो गया, ये सब बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, यहाँ पे तुम ट्राई कर सकते हो। फिर सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे कैपजेमिनी हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी लगते हैं, पर कंपैरेटिवली यहाँ पे क्वेश्चंस उतना हार्ड नहीं होता एज कम्पेयर टू फैंग टाइप कंपनीज। फैंग में अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए, बेसिक के बाद एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होता है वो भी तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। पर अगर तुम किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर रहे हो वहां पे भी चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं चाहिए, बट उनके क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं होते जितना ये फैंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में होता है। और क्या होता है, थर्ड स्टार्टअप्स होता है। ज्यादातर स्टार्टअप्स में नहीं लगता उतना डीएस एल्गो का पार्ट, मतलब छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, पर बड़े स्टार्टअप्स अगर तुम देख लो अभी जो है जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, उबेर हो गया, वहां पे अगर तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हें डीएसएल को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन लोगों का रिक्वायर्ड होता है डीएसएल को, उन लोगों का अच्छा होना चाहिए। फिर अगर कोई डेवलपमेंट का भी स्किल होना चाहिए और डीएसएल को भी तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। तो ये पार्ट ये कंपनीज का लिस्ट हो गया। अब जो मेन पार्ट है कि बहुत लोगों को लगा हुआ कि अच्छा ठीक है इसमें तो उन्होंने सैलरी नहीं दिया। अब सैलरी ना देने का मेन जो रीजन है वो है कि क्योंकि मैं जो कंपनीज को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ उन लोगों का सैलरी में बहुत ज्यादा गैप। गैप कैसा है, मतलब अगर तुम फैंग कंपनीज में अप्लाई करते हो, फेसबुक, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, उन लोगों का पैकेज बहुत ज्यादा होता है। वहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा 30 LPA 40 LPA का पैकेज होता है कि 40 लाख पर annum वैसा पैकेज मिलेगा। पर अगर तुम सर्विस कंपनीज में जाओगे जैसे TCS हो गया, कैपजेमिनी हो गया, विप्रो हो गया, वहां पे तुम्हें 3.8 लाख के अराउंड या 4 लाख के अराउंड मिलेगा। और वहां पे पोजीशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कभी कभी एनालिस्ट भी होता है तो वो भी हो सकता है। और अगर स्टार्टअप्स हो गए जोमेटो स्विगी तो वहाँ का बहुत वेरी करता है, क्योंकि कोई स्टार्टअप बहुत ज्यादा देता है, 16 LPA के करीब या 20 LPA करीब देता है, और कोई स्टार्टअप कम भी देता है, 7 या 8 LPA के करीब देता है। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी होता है, इसलिए मैंने उतना कुछ इसके बारे में बोला नहीं। तो ये जो है अब सबसे अच्छा है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर करो। कॉम्पिटिटिव कोडिंग अगर फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, जितना हो सके करते टाइम दो और डेट को भी एक्सप्लोर करो, दोनों को एक साथ मिला के चलो, सबसे अच्छा ये कॉम्बिनेशन होगा। तो यही मेरा पार्ट था। तो अब मैं चाहूंगा कि ईशान कुछ बोले और पार्ट्स के बारे में थोड़ा।
तो अब हम लोग कंक्लूजन में आ गए हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग को 3 या 4 साल में डिग्री मिल सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगला दिन एक नया फ्रेमवर्क आ जाएगा, तो हम लोग उसको ट्राई करेंगे, उसको सीखेंगे, तो हम लोग का इंजीनियरिंग का लर्निंग कभी खत्म नहीं होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सभी सिर्फ है और कोई ऑप्शंस नहीं है, तो एक सेकंड। अच्छा, हाँ, तो है, बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी adds digital element to a live view, often by using a camera on a smartphone. तो और visual reality implies a complete immersion experience that shuts out the physical world. तो VR glasses हम लोग को मिलता है। तो VR glasses आप लोग को पता होगा कि VR glasses से हम लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है, ग्लासेस से गेम खेलते हैं हम लोग, तो वो फील्ड्स है। फिर क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस थ्रू द यूज ऑफ कोड्स। तो वो क्रिप्टोग्राफी हम लोग को एनक्रिप्टेड करेंसी भी होता है, तो वो है हम लोग का क्रिप्टोग्राफी। फिर नेटवर्क एनालिटिक्स एंड टेस्टिंग, वो हम लोग को पोटेंशियल सिक्योरिटी इश्यू से डिटेक्ट करने के लिए नेटवर्क मतलब और ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए हम लोग को वो नेटवर्क एनालिटिक्स एंड टेस्टिंग होता है। रोबोटिक्स सबको मालूम है। रोबोटिक्स इज इंटरसेक्शन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिससे हम लोग मशीन्स बनाते हैं, उसे हम लोग रोबोट्स कहते हैं। उससे ह्यूमन एक्शंस रिप्लिकेट करने का वो करवाते हैं वो रोबोट से। फिर कंप्यूटर VFX है, जिससे हम लोग का औसम सब फिल्म्स मिलता है, जैसे बाहुबली टाइप्स एंड एवेंजर्स एंड ऑल। तो और भी बड़ा बहुत कुछ है, तो बहुत सारा ऑप्शंस है। और हम लोग आ गए हैं हम लोग का एंड में, तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपना फील्ड वाइजली चूज करें, और जिस फील्ड में आप लोग फोकस करेंगे, डेडिकेशन और पेशेंस के साथ कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग को प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में जाके आप लोग एक दिन जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू। So guys, thank you for joining today's session.